नमस्कार मित्रांनो. हडस हायस्कूल ॲल्युमिनी असोसिएशन नागपूर यांच्या संवादी स्वर या व्याख्यान मालिकेतल्या चौथ्या भागात आपलं सगळ्यांचं सहर्ष स्वागत आहे. आज या कोविडच्या काळात आपण एक नवीन विषय घेऊन आलेलो आहे, जो आपण सगळे शाळेशी रिलेटेड असल्यामुळे स्कूल एज्युकेशन ड्युरिंग कोविड-19 पॅन्डेमिक अँड चॅलेंजेस अहेड. तर शाळेशी संबंधित शाळेचं जे शालेय शिक्षण आहे आणि आता कोविडमुळे जे ऑनलाईन एज्युकेशन चालू झालेलं आहे, डिजिटल एज्युकेशन चालू झालेलं आहे, या विषयाबाबत आज आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी श्री सतीश सालपेकर आलेले आहेत. मी आपल्याला श्री सतीश सालपेकर सरांचा थोडक्यात परिचय करून देतो. श्री सतीश सालपेकर हे सिव्हिल इंजिनियर असून एक नोटेड कन्सल्टंट, प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंट आहेत. बीइंग डायरेक्टर्स ऑफ व्हेरियस कंपनीज, he is also cost and quality auditor and empaneled arbitrator at Bombay High Court, Nagpur bench. He is member of various international organizations including American Concrete Institute. He is currently chairman and previously treasurer of Central Hindu Military Education Society, which runs Bhosla Military School, and presently he is presiding Vishwa Punarnirman Sangh, which runs Bharati Krishna Vidya Vihar, a noted CBSE school in the region. I am also proud to tell you that student of Bharati Krishna Vidya Vihar, Miss Arya Dau, was third in order of merit and first in Maharashtra in last CBSE 10th standard result. So, and more importantly, Shri Satish Salpekar is alumnus of Hardus High School. He is 71 batch pass out, and I am also proud to tell you that he is also one of the directors of Hardus High School Nagpur Alumni Association. Friends, this session will be mostly in English and vernacular language. Now I request Shri Satish Salpekar to give his introductory remarks regarding this particular topic. Shri Satish Salpekar, please. Good evening, friends. I feel honored to have with you today for this webinar on school education during the COVID-19 pandemic. No one was expecting any situation like lockdown, a complete lockdown. In the month of January and February, I think the situation was not all that bad. The number of new cases was very, very low. I think it was in a couple of hundreds, not more than that. And we were totally busy. All the schools, generally, February and March, these 2 months, they are always very, very busy months because everyone is busy with the board examinations. And nowadays, when you say board examination, it's a very complicated issue because of some unwanted things that happened a few years back. And nowadays, conducting board exams is quite difficult. Our teachers, our staff, they are all very, very busy.
Based on that, our staff was totally busy when the COVID-19 pandemic was announced. I think sometime in the mid of March, around 14th or so, the first direction came from the Maharashtra government. By this time, there was no direction from the central government. The first direction came from the Maharashtra government, and it was like from 16th March to 31st March, all schools shall remain closed. But board exams will continue. So, Bhau, I want to ask one small And question. there, How you yeah, then, yeah, so in this difficult situation, how you managed all these examinations? actually hardly one or two papers were conducted, and on 18th, on 16th, CBSE issued some guidelines, and they asked us to uh, make the seating arrangement as per the social distancing norms. And my school, they had about 600 students appearing for the exam, and we were required to use all our buildings, because seating only few people in one classroom, all our buildings were required to be used for the board examinations. But we could conduct hardly one or two papers, and then on the 18th March, CBSE and even state boards, they all postponed the board exams. And from 19th onwards, even the answer sheet evaluation work, that was also stopped. We were absolutely under the dark. We just didn't know how it's going to happen. But things were all moving at a very fast pace developments. In just 10-12 days, total lockdown was declared for 3 weeks on 24th by Honorable Prime Minister. CBSE, I can tell you, they are very sensible and very sensitive. 24th lockdown was declared, and 26th CBSE issued us guidelines for e-learning, so that the remaining syllabus of our middle school and primary school students don't get affected. But at this point of time, we were not really well equipped. Our teachers, our students, none of us knew how to start e-learning. And we were always waiting for the guidelines and directives. But we had given directions to our teachers and students to start e-learning process and complete the remaining syllabus.
On 1st of April, CBSE declared that all class 1 to 8 and 9 and 11 should be cancelled, and all students of class 1st to 8 should be en bloc promoted to higher class. Similarly, class 9 and class 11 students, they should be promoted based on their performance in the internal exams conducted by the school. Now, all this was good, but because of total lockdown, our office was closed, our schools were closed. We couldn't take any action. Though CBSE has given us directions, we could not take any action. And then we were just waiting for the next guidelines to how to go about it. But in the meanwhile, we informed our parents the decision of the, we shared the circular that came from CBSE, and we informed them that they are not to worry. Their children will be promoted. Now, all these things are okay, but everyone was, locked inside the homes. Parents, their children, everyone were locked down inside their homes. And these empty minds are devil's workshops. We have our counselors in the school, and our class teachers, they also have class-wise, section-wise, standard-wise groups on WhatsApp. Friends, I'm not really a very big fan of WhatsApp groups. I myself quit from most of the social WhatsApp groups because I feel it is more of wastage of time. But these WhatsApp groups, during this COVID-19 pandemic, as far as school education is concerned, it became very handy for our teachers to communicate with the students, to communicate with their parents. I felt it was a boon in disguise. As I said earlier, these empty minds, they started thinking weirdly. A lot of parents shared that they feel concerned about how will their children cope up with this online learning. They also felt uncertain about their future because nobody knew how things are going to move ahead. Few people were also worried because they felt they have paid the fees, but not sure how they will cope up with this virtual learning. Okay. So, I have another question at this juncture, that when
the Yeah, circular Mahendra. from when the circular from CBSE reached school that you have to adopt to e-learning process, whether the institutes, means we are talking in broad about all educational institutes, CBSE institute who received these circulars, were they prepared to deliver e-contents or e-learning process at that particular point of time? Was it ever thought of prior to this COVID-19 situation that this means e-learning would be the part and parcel of school education? Mahendra, to be very frank, nobody had even an iota of idea how to go about it. It was when we received the circular from the CBSE, I personally went to that site and saw what they're talking about. But before we start anything, parents still had a lot of questions. Now, because of this WhatsApp groups, what was happening was the children were unnecessarily getting access to the smartphones. Not only WhatsApp groups, they were getting access to other content also. और आपको मालूम है ये बच्चे जो होते हैं ये बहुत शैतानी करते हैं. वो ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, चैट करते हैं. They are very fast to grasp all these things. And parents were really worried. When we started giving lessons on these WhatsApp groups, students were not serious at all because there was no discipline. What happens when you go to the classroom? There is a discipline. When they go to the school, there is a discipline, there is some prayer, there is a set discipline of the school. There is a set discipline established by the teacher. And when the teacher teaches something, the teacher asks questions to check whether students have understood or not. All these things are absent in this WhatsApp learning. What our teachers were doing was that they were sending some recorded lectures to the students on WhatsApp. They were sending some text also. But what is happening in this case is, there is always three types of students. The first type is the all brilliant one, intelligent one. That is, you can say 85% and above. There is a second category, which is say 60 to 85%. Now, these first category students, they are very bright and they are responsive also. Generally, even in the classrooms, when teachers teach, these students are quite responsive and they ask questions. So such students, they ask questions even on the WhatsApp groups also. The second category students, teachers have to make efforts. Then some students would react.
But the third category students, they won't react at all. And it was totally unknown to the teachers. Whatever they are sending, it's being understood by the students or not. The parents and the teachers all had a very hard time making insincere students respond. Another problem was that was from the parent side. To manage their own work from home and children full time at home simultaneously, it also became a task for the parents. One of the parents shared, when I am home, naturally my attention is divided and I observe myself checking more on children, which lowers my efficiency to manage my own work and home both together. See, these are the problems which are created by this COVID-19, which nobody envisages at all. Apart from this, being at home 24/7, laziness and unwillingness to take up many tasks was also a problem. Fear psychosis is another big issue with COVID-19. Mahendra, you, I, everybody, we had no idea what COVID-19 is, how it is going to affect all of us. So was the case with the parents, with the children. People were scared. They never could visualize how this is going to move ahead. People feared what happens if they get infected. People feared what happens if children get infected. Okay. All such issues were there. Yes, Mahendra, go ahead. Yeah, so the question extended to this particular scenario is whether schools were having any data or statistics available with them, that how many children will be able to go through e-learning platforms, or whether they have smartphones, whether their teachers are handy with these smartphones, or do they have laptops at their home regarding their connectivity. So इस तरीके का कुछ एक सर्वे या स्टैटिस्टिक्स या डाटा कुछ स्कूल्स के पास अवेलेबल था क्या, क्योंकि सीबीएसई ने इमीडिएटली जो इंस्ट्रक्शंस दिया कि आपको ई लर्निंग पे मूव होना है, तो क्या स्कूल के अपार्ट फ्रॉम दिस इंफ्रास्ट्रक्चर स्टूडेंट्स, हाँ बेसिकली कैसा है, ये तो किसी को भी आइडिया नहीं थी भाई ई लर्निंग क्या है, कैसा कंडक्ट करना। और जो सीबीएसई ने पहली गाइडलाइन भेजी थी उसमें बहुत ज्यादा कुछ डिटेल्स नहीं थे, और जो ये पेरेंट्स के पास से जो क्वेश्चंस आ रहे थे, इसको भी हमारे काउंसलर्स, टीचर्स रिस्पॉन्ड कर रहे थे, क्योंकि उनको कुछ एश्योरेंस चाहिए था कि हमारे बच्चों का नुकसान नहीं होगा। और ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी हम लोगों पर उस समय, पेरेंट्स को कन्विंस करने की, उनकी क्वेरीज को सेटिस्फाई करने की। और हम लोग इसी में इनिशियली लगे रहे। इवन क्या हो रहा था, पेरेंट्स की चिड़ी
चिड़ भी हो रही थी बच्चों के ऊपर में, उसके लिए भी उनको ये बताना बहुत जरूरी था कि बच्चों से किस तरह से बिहेव करना चाहिए। बच्चों का जो भी व्हाट्सएप के जरिए हमारा जो इंटरेक्शन चल रहा था, उसमें भी कितना टाइम ये ऑनलाइन स्टडी के लिए, कितना टाइम उनको ऑनलाइन गेम खेलने के लिए, बाकी खेल खेलने के लिए, ये सारी चीजें प्लान करने को उनको कहा गया। ये करीब करीब देखो 4 अप्रैल को सीबीएसई ने एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को के डिटेल्स भेजे। ये दीक्षा करके एक प्लेटफॉर्म है, ये 6 से लेकर 10th तक का, इसमें सारे स्टैंडर्ड्स का जो एनसीईआरटी के बुक्स के हिसाब से और सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से सारा सेल्फ लर्निंग कंटेंट था। पर यह कैसा था कि वहां पर रिकॉर्डेड लेक्चर से स्टूडेंट ने इन लेक्चर्स को सुनना है और उस पर से अपनी खुद की तैयारी करना है। अब हमारे कोई भी बच्चे इस तरह के ई लर्निंग एक्सपीरियंस से कोई वाकिफ नहीं थे। तो इन लोगों को बेसिकली दीक्षा का प्लेटफॉर्म कैसे यूज करना, ये भी एक समस्या थी। और इसके अलावा जैसे सभी स्कूलों के पास में अपने अपने सिमिलर प्लेटफॉर्म्स थे, क्योंकि जो ई बोर्ड है, ई बोर्ड तो सारे स्कूलों में कई सालों से लगे हुए हैं, तो वहां पर भी एनसीईआरटी की बुक्स का सारा कंटेंट आता है और ये कोई ना कोई प्लेटफॉर्म सभी स्कूलों को देता है। तो ये हर स्कूल अपने अपने पास में जो ई लर्निंग का जो कंटेंट है वो अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सारे लोग इसको यूज कर रहे थे। पर ये सब करने के बाद में स्टूडेंट के पास से जो फीडबैक आया वो बहुत अच्छा नहीं था। किसी के यहाँ इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, किसी को इंटरनेट को एक्सेस ही नहीं है, कई लोगों को जो है वो ई लर्निंग ऐप जो है वो यूज करना कैसा करना ये नहीं समझ में आ रहा। इवन टीचर्स को भी कई बार ऐसा हुआ कि ये ऐप कैसा यूज करना, पहली बार यूज कर रहे थे। तो इसके वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो हर कोई अपने अपने हिसाब से ई लर्निंग की प्रोसेस चालू कर दी थी। हम लोगों ने भी स्कूल में ये सोचा कि पहले 10वीं और 12वीं के जो स्टूडेंट्स है इनके ऊपर में फोकस किया जाए और उन्हीं को फिर इनिशियली ये व्हाट्सएप ग्रुप से क्लास टीचर्स लेसन्स और वीडियो क्लिप्स भेजते थे। पर ये सारी समस्याएं देखने के बाद में सीबीएसई के भी ध्यान में आया कि टीचर्स को भी ट्रेनिंग देना जरूरी है। और सीबीएसई ने फिर मेरे ख्याल से ये अप्रैल लास्ट वीक में शायद उन्होंने या मई फर्स्ट वीक में टीचर्स के ट्रेनिंग का प्रोग्राम शुरू किया। और ये प्रोग्राम अभी अभी तक चल रहा था, मेरे ख्याल से अभी भी शायद शुरू है। पर केवल ये ट्रेनिंग से कुछ होने वाला नहीं था, क्योंकि टीचर्स के पास ई लर्निंग के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी ये तो सॉफ्टवेयर यूज करने की बात हो गई, हार्डवेयर की भी बात है, कनेक्टिविटी की बात है। अब ये सारा तो कुछ सीबीएसई के ध्यान में नहीं आ रहा था।
और हम लोगों को स्कूल मैनेजमेंट्स को इस समय इंटरवीन करना पड़ा। हम लोगों ने पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा टीचर्स के साथ में हम लोगों ने चर्चा शुरू की। पहले तो उनसे समझ लिया कि ये सब क्या हो रहा है, किस तरह से पढ़ाई चल रही है, बच्चों का रिस्पांस क्या है, बच्चे समझ रहे या नहीं समझ रहे। और उसमें से जो निचोड़ आ रहा था वो कोई बहुत एनकरेजिंग नहीं था। तो हम लोगों ने पहले बेसिकली एक तो व्हाइट पेपर तैयार किया कि हमारे सामने क्या क्या समस्या है और अभी आगे कैसा जाए। आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस समय हम करीब करीब कुछ फाइनल डिसीजन लेने की कंडीशन में है। शायद कल से शुरू होने, परसों से शुरू होने वाले हफ्ते में फाइनल डिसीजन हो जाएंगे। अब ये सारी समस्याएं क्या थी, जैसे मैंने बोला आपको, व्हाट्सएप में 1-to-1 कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था टीचर और स्टूडेंट के बीच में। जो मोबाइल फोन का छोटा सा डिस्प्ले है उसके ऊपर में देखना पड़ रहा था। टीचर्स वर ऑल्सो अनेबल टू असेस कि बच्चों को क्या समझ रहा है। अब ये सब जानने के लिए हमारी स्कूल में हमने एक गूगल फॉर्म्स के जरिए हमने एक सर्वे कंडक्ट किया। आपको ये स्लाइड दिख रही होंगी। हमारे यहाँ के करीबन 2240 की हमारी स्ट्रेंथ है, इसमें से करीबन 1863 लोगों ने उसको सर्वे में भाग लिया। अब आपको एक चीज इसमें देखेंगे, ऑलमोस्ट 99% लोगों के पास में इंटरनेट कनेक्शन है, केवल 1% लोगों के पास में नहीं है। बट आई एम नॉट श्योर क्योंकि ये जो करीबन 16-17% लोग हैं जिन्होंने सर्वे को रिस्पॉन्ड नहीं किया, इनमें से कितने लोगों के पास में इंटरनेट की सुविधा नहीं है, ये जानकारी हमारे पास नहीं है। पर इस वर्ष से भी हम गए, एवरेज भी हमने निकाला, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि 10% लोगों के पास में इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है। अब इन सारे लोगों को कैसा पढ़ाया जाए। अब मैंने जैसा बोला कि मोबाइल पे तो सबके पास में, आपको दिख रहा है इसमें 99% के पास में मोबाइल फोन के थ्रू इंटरनेट कनेक्शन है और केवल 30% लोगों के पास में वाईफाई है घर पर। और लैपटॉप या पीसी अपन देखेंगे तो केवल 47% लोगों के पास में लैपटॉप और पीसी है, जिसके ऊपर में कन्वीनियंटली देखा जा सकता है। अब इस सारे कंडीशन में एक आप आखिरी की फिगर यदि देखेंगे, हमने ये भी प्रश्न पूछा था कि इन व्यू ऑफ कोविड-19 लॉकडाउन विल यू एनकरेज बीकेवीवी टू स्टार्ट ऑनलाइन क्लासरूम। इसको भी करीब करीब 90% लोगों ने रिस्पांस हाँ में दिया है। अभी 90% लोगों ने हाँ में दिया, लेकिन हम इसकी प्लस माइनस करेंगे तो हमको ये ध्यान में आएगा कि करीबन 52.5% लोग जो है ये मोबाइल के जरिए एक्सेस करेंगे ई लर्निंग प्रोग्राम। अब ये जो इसके बाद में हमने टीचर्स का भी सर्वे किया, टीचर्स को भी इन्वॉल्व किया सर्वे में, उनके पास में क्या है क्या नहीं, क्योंकि टीचर्स के पास में भी इंफ्रास्ट्रक्चर यदि नहीं है तो वो पढ़ाएंगे कहाँ से।
इसमें भी हम देखेंगे तो वहां पर भी वही कंडीशन है कि 99% टीचर्स के पास में इंटरनेट का एक्सेस है, पर वो स्मार्टफोन के जरिए है। करीब करीब 70-72% टीचर्स को वाईफाई के जरिए एक्सेस नहीं है। तो ये समझ लीजिए कि करीब करीब 60% टीचर्स जो है ये मोबाइल फोन से ही एक्सेस कर सकते हैं। अब मोबाइल फोन यदि हम यूज करेंगे तो मोबाइल फोन में बहुत सारी लिमिटेशंस है जो लैपटॉप या पीसी में नहीं रहते, पर मोबाइल फोन में कई सारे फंक्शंस जो है वो काम नहीं करते। और जहां तक बच्चों पेरेंट्स का सवाल है, हमने ये सब सर्वे करने के बाद में, सर्वे का रिजल्ट आने के बाद में एक जूम मीटिंग में करीबन 500 पेरेंट्स से बात की। पेरेंट्स के भी कुछ कंसर्न्स थे, वो भी हमने जान लिए। पेरेंट्स का एक मेन तो कंसर्न ये था कि ई लर्निंग में जो मैंने पहले ही बोला कि वो क्लासरूम लाइक फील जो नहीं है, फील नहीं आता है। घर में बैठ के बड़े कैजुअल इसमें बच्चे बैठे हुए हैं, वो ठीक से पढ़ाई नहीं करते, ठीक से फोकस नहीं करते। अच्छा, ये ई लर्निंग में उनको एक समस्या ये भी लगती है कि जैसे क्लास में टीचर स्नैप टेस्ट लेती है, वैसे टेस्ट वगैरह कुछ हो नहीं पाएगी। अब हमारे सामने पर्याय ये था कि हमने क्या करना चाहिए, लाइव क्लासरूम या फिर वही पर बड़े इस पे रिकॉर्डेड वीडियोस भेजना या लेसन्स भेजना। एक ऐप ऐसा है जिसमें 1-to-1 वॉइस बात नहीं होती है, लेकिन ये सब डेटा लोड करने के बाद में, कंटेंट लोड करने के बाद में टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में टेक्स्ट मैसेजिंग के जरिए इंटरेक्शन हो सकती है। और ऐसा एक रुझान हमको दिखा कि पेरेंट्स इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है ना कि लाइव क्लासरूम्स में। अब हमको ऐसा लगता है कि लाइव क्लासरूम्स जो है वो भी करना चाहिए, पेरेंट्स को एक समस्या ये भी है कि एक घर में 2 बच्चे हैं और दोनों का ई लर्निंग करना है, तो एक मोबाइल कैसा शेयर होगा, ये भी बड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। इसलिए उनका कहना यह है कि ये जो पहला ऑप्शन है कि वो रिकॉर्डेड वीडियोस भेजने वाला और टेक्स्ट भेजने वाला, वही चालू रखा जाए, सो दैट बच्चे अलग अलग समय पर वो मोबाइल यूज कर सकेंगे और अपना कंटेंट डाउनलोड कर सकेंगे। सो इसको कंटिन्यूटी में मेरे को आपको एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ, बेसिकली हाँ, इसमें बोलो। जो मेन स्टेक होल्डर्स है टीचर्स, सो इनका स्किल हाँ। टेस्ट, इनका जो स्किल सेट है, दे वर ट्रेन टू हैव इंटरैक्टिव एजुकेशन, या बच्चों को पढ़ाने का उनका स्टाइल अलग था। एंड आफ्टर दिस पर्टिकुलर कोविड-19 सिचुएशन, जैसा उन्होंने अपने वीडियोस बनाए या ऑडियोज के जरिए स्टूडेंट तक पहुंचने की कोशिश की, तो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ टीचर्स, what difficulties they faced
to cope up with this particular situation? पहला तो मैंने बोला जैसा कि टीचर्स को ये असेस ही नहीं कर पा रहे कि बच्चों तक क्या पहुंच रहा है, स्टूडेंट्स तक क्या पहुंच रहा है और स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से सिर्फ हमने भेज दिया है तो वहां से स्टूडेंट से जब तक रिस्पॉन्स नहीं आता है तब तक कुछ नहीं हो सकता। और ये रिस्पॉन्स के लिए ये लाइव क्लासरूम की जो आइडिया है ये हमने रखी थी। अब पेरेंट्स इसके लिए तैयार भी हुए हैं लाइव क्लासरूम के लिए, लेकिन एक निचोड़ ऐसा भी निकल रहा है कि शायद हफ्ते में एक बार एक विषय का लाइव क्लासरूम करेंगे और बाकी समय जो है वो रिकॉर्डेड वीडियोस या रिटन ये टेक्स्ट में कंटेंट भेजेंगे टेक्स्ट फॉर्म में। और फिर जो हफ्ते के आखिरी में जब ये लाइव क्लासरूम होगा तो उस समय जो है वहां पर वो प्रश्न पूछ के बच्चों को क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में आया ये असेस कर पाएंगे। ये करना बहुत जरूरी होगा। अब ये करने में भी कई सारे प्रॉब्लम्स हैं। एक बेसिक प्रॉब्लम तो यह है कि जैसे हमारे स्कूल में 5 सेक्शन है एक स्टैंडर्ड के, और 5 अलग अलग लाइव क्लासरूम्स हमने बनाई, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा वो बहुत ज्यादा है। तो एक आइडिया ये भी है कि शायद 5 सेक्शन के जो 200-250 बच्चे होंगे उनको एक ही समय लाइव क्लासरूम में इनवाइट करे और सारे टीचर उनके जो हर सेक्शन के जो टीचर्स है वो भी उस समय वहां रहे और वो अपने अपने बच्चों को उस समय प्रश्न पूछ के असेस करे कि बच्चों को कहां तक समझ में आ रहा कहां तक नहीं समझ में आ रहा। अब ये सारी दिक्कतें जो है, अब ये सारी चीजें हमने जब पेरेंट्स के साथ बात की तो उनके सामने फ्रैंकली ये सारी चीजें डिस्कस की उनके साथ में, और उनके भी सुझाव लिए हमने। और अभी बाकी जो अभी हमने केवल 9वीं 10वीं 11वीं वालों का किया, अभी मिडिल स्कूल का भी इंटरेक्शन करना है, प्राइमरी का इंटरेक्शन करना है, क्योंकि वो प्राइमरी के बच्चे या नर्सरी के बच्चे वो कहाँ से ही कंटेंट देखने वाले हैं, तो पेरेंट्स को ही लेके बैठना पड़ेगा। तो इसी से आगे का सवाल आ रहा है भाऊ मेरे मन में ये कि क्या कोविड-19 को पेरेंट्स को ही फिर से क्लासरूम में एंटर करना पड़ेगा, यानी उनके काम अलग रह गए और जिनके नर्सरी या आपने जैसा बताया केजी या इस लेवल के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए फिर जो एजुकेशन का जो सिग्निफिकेंस है कि एक टीचर के थ्रू एजुकेशन इम्पार्ट किया जाए, तो ये ई लर्निंग कंटेंट में या डिजिटल स्टडी रूम कंटेंट में या जो भी टेक्नोलॉजी का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें एज ए टीचर का रोल कहाँ पे आता है। और इससे इन द मीन टाइम थोड़ा मैं इंटरप्ट करके हमारे ऑडियंस को ये अपील कर रहा हूँ कि उनके कोई क्वेश्चंस होंगे तो, क्योंकि हम लोगों ने अभी क्वेश्चंस के लिए सेशन ओपन किया हुआ है, तो आपके भी दिमाग में जो भी क्वेश्चंस है या आप जो क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं वो ज़रूर पूछिए। आपके फेसबुक में आप टाइप कर सकते हैं वो क्वेश्चंस, वो हम लोग हमारे आज के जो स्पीकर है श्री सतीश सालपेकर जी इनको पूछेंगे, तो आपके भी क्वेश्चन दीजिए। और मैंने जो क्वेश्चन भाऊ आपसे पूछा हुआ है उसका अभी आपसे जवाब हम लोग सुनना चाहते हैं। कुछ दिन पहले मैंने फेसबुक पर ही सॉरी एक वीडियो क्लिप शेयर की थी। ये बंगलोर के कोई एक डॉक्टर महाशय थे, सर्जन थे, और उन्होंने बहुत अच्छा ये किया हुआ, एडवाइस किया हुआ इसमें
अब बंगलोर आपको मालूम है कि इट इज अ वेरी एडवांस सिटी एंड e-learning platforms started operating in Bangalore uh, ahead of other cities. And then he realized that बच्चों के साथ में पेरेंट्स भी टीचर्स क्या पढ़ा रहे हो देख रहे हैं, टीचर्स का प्रेजेंटेशन कैसा है वो देख रहे हैं, टीचर्स के प्रोनाउंसिएशन कैसे ये देख रहे हैं, टीचर स्पेलिंग बराबर लिखते हैं कि नहीं ये देख रहे हैं. अब ये सब देखने के बाद में ये डॉक्टर महाशय ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि उनका कहना ऐसा है कि जैसे हम सर्जन लोग ऑपरेशन थिएटर में जब सर्जरी करते हैं तो हम पेशेंट के रिलेटिव्स को ऑपरेशन देखने नहीं देते, सर्जरी देखने नहीं देते. क्यों नहीं देखने देते? क्योंकि हम ट्रेंड है बंद इसमें एनवायरनमेंट में ऑपरेट करने. अब कोई हमको वॉच कर रहा है, अब कोई वॉच करेगा तो उसको कई सारी चीजें हमारी अटपटी लग सकती है, जबकि वो अटपटी नहीं होती है. अब ऐसे ही टीचरों का है कि टीचर्स जो है ये क्लासरूम एनवायरनमेंट में टीचिंग करने का इनको ट्रेनिंग दिया गया है. और जब ये टीचिंग करते हैं तो उस समय कोई पेरेंट वहां पर नहीं होता है. अब लाइव क्लासरूम्स में पेरेंट यदि अपने बच्चे के बाजू में बैठ के देखेगा तो समस्याएं खड़ी हो रही है. तो डॉक्टर महाशय का ये कहना है कि ऐसा मत कीजिए, और ये टीचर्स को ट्रेनिंग नहीं है, इनको जिस हिसाब से ये सब चल रहा है तो इनको इस समय हमने एक्सक्यूज करना चाहिए और इस विषय पर कभी भी बहस करके, डिबेट करके, चर्चा करके इन मुद्दों को सुलझाना चाहिए. ये बहुत बड़ा अच्छा सुझाव था. और मैंने भी अभी कल परसों ही मैंने जब हमारे स्कूल के टीचर से बात की तो मैंने भी उनको ये समझाया कि आप लोग ट्रेन नहीं हो और ये पेरेंट्स भी आपको देखने वाले हैं पढ़ाते समय, तो आप कॉशियस रहिए बट घबराइए मत. आपका जो नेचुरल फ्लो है वो नेचुरल फ्लो में पढ़ाइए. और मैं इस वेबिनार के द्वारा सभी पालकों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह टीचर्स की गलतियां ना निकाले. ये 3-4 महीने जो हमारे सामने है इसको हम लोग अच्छे तरीके से निभा लेंगे और बच्चों का नुकसान नहीं होगा, इसकी तरफ हमारा ध्यान रहेगा. महेंद्र, इसके अलावा एक दूसरी बहुत बड़ी समस्या जो है बट वो है, मैंने जैसा बोला वो ये दो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग आए हुए हैं. यस, बहुत इंटरेस्टिंग एक छोटा सा मैं ये कर देता हूँ. ओके, मैं एक पहले छोटा सा ये बोल देता हूँ कि ओके. दूसरी एक मेरी रिक्वेस्ट पेरेंट्स को है, जिसको भी फाइनेंशियली पॉसिबल है उसने घर में या तो लैपटॉप या पीसी खरीद के बच्चों को उसके ऊपर में ई लर्निंग की सुविधा उपलब्ध करा दो. मुझे मालूम है ये आज के दिनों में बड़ा कठिन समय है फाइनेंशियली, पर इसके तरफ थोड़ा ध्यान दें तो आपके बच्चों का भला होगा. इसमें एक दूसरा, आज मेरे ख्याल से कुछ 19-20 हजार के आसपास लैपटॉप अच्छा मिल जाता है. दूसरा एक ऐसा भी हो सकता है कि मोबाइल फोन पर से स्मार्ट टीवी पर स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, मिरर स्क्रीन या कास्ट स्क्रीन जो हम बोलते हैं, ये सब कर सकते हैं. और आज वो HD रेडी कैटेगरी के टीवी जो है
ये 9,000 से 12,000 तक के बहुत अच्छे अच्छे टीवी मिलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोगों ने करना चाहिए। थोड़े आज खर्चे होंगे, लेकिन ये खर्चे करके अपने बच्चों की तबीयत का ध्यान रखना, आंखों का ध्यान रखना जरूरी है। ये टीवी स्क्रीन भी ऐसा रखना चाहिए कि जो आई लेवल से पे रखा हुआ हो, ताकि बच्चों को ऊपर नीचे देखने की जरूरत ना पड़े। इससे गर्दन में भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है, ये थोड़ी ध्यान देना बहुत जरूरी है। दूसरा एक मेन जो हमारा कंसर्न है वो है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हमको जो आ रहे हैं। ये सारे इसमें आपको मालूम होगा, पेपर में भी आ रहा है, पेरेंट्स भी जाके सरकार के पास दरखास्त कर रहे हैं कि हमें फी माफ कर दीजिए। अब फी भी माफ कर देंगे, जो फी देने को तैयार है उनको फी भी नहीं मांगेंगे। तो ऐसे समय, और जो हमारे टीचर्स है इनको पूरा सैलरी में उनको देना है, उसके लिए भी सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला है। अब ये सब कैसा होगा, ये बड़ा अजीब सिचुएशन है आपके सामने में। दिस इज रियली चैलेंजिंग हाँ, सिचुएशन। बहुत चैलेंजिंग है। और कई कई स्कूलों की आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। और इसके अलावा तो मैं आपको ये भी कहूंगा कि आज हमको आरटी के करोड़ों रुपए नहीं आए, एक एक स्कूल के, हमारे स्कूल के 1.5-2 करोड़ रुपए अभी तक नहीं आया। और ऐसे इसमें स्कूल कैसी चलाई जाना चाहिए, सरकार ने भी इन चीजों की तरफ में ध्यान देना बहुत जरूरी है। महेंद्र, इसके बाद में अब कोई भी प्रश्न अपन ले सकते हैं, अभी कोई हाँ, तो जो दो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आए हुए हैं, एक है कि अभी जो कमिंग 10th और 12th के जो स्टूडेंट्स रहेंगे, यानी अभी तो चलो एक भूगोल का पेपर था, एवरेज मार्क और ये करके वो प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट ने टेम्पररीली सॉल्व किया हुआ है। बट जो अभी 10th और 12th में एंटरिंग स्टूडेंट्स हैं, तो उनके क्रूशियल ईयर में क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि अभी अंदाजा है कि 2-1 महीने और ये सिचुएशन चलेंगी, या वॉट एवर आर द प्रोजेक्शंस कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना पड़ेगा। और दूसरा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एकदम किड के बारे में है कि भाई नर्सरी, जो आपने थोड़ा जब भी हाईलाइट भी किया कि नर्सरी गोइंग किड जो है वो ई लर्निंग को कैसा कोप अप करेगा इतने लिटिल एज में। सो दो कॉन्ट्रास्ट है, 10वीं 12वीं के स्टूडेंट्स और नर्सरी के स्टूडेंट्स। सो आप इसको कैसे आंसर करेंगे? नहीं, मैं आपको पहले नर्सरी के बारे में बता दूं। मेरा पोता भी नर्सरी में है, मुंबई में है। वहाँ पर इसी तरीके से ये कर रहे हैं। और टीचर्स जो है वो असाइनमेंट देते हैं, और पेरेंट को असाइनमेंट लेनी पड़ती है, बच्चों को पढ़ाना है, और पढ़ाने के बाद बच्चे ने उसको करके दिखाना है, और वो पेरेंट ने रिकॉर्ड करके वापस टीचर को भेजना है। इस तरीके से आज मुंबई में चालू है। हमको भी ऐसा कुछ करना पड़ेगा। दूसरा आपका जो प्रश्न था 10वीं और 12वीं वालों के लिए, तो जहां तक सीबीएसई की का सवाल है, मुझे ये मालूम है कि अभी तो 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक के लास्ट ईयर के 12th के जो बचे हुए पेपर्स है वो सीबीएसई कंडक्ट कर रही है। और इसमें इस बार इन्होंने क्या किया है कि अपने अपने स्कूल में ही जो सेंटर रहेगा, तो एक हमारे लिए बहुत आसान बात हो गई है, क्योंकि इसमें बहुत कम बच्चे रहेंगे। हमारे खुद के बच्चे जो है वो करीबन 200 से 250 के बीच में बच्चे रहते हैं, जबकि हमारे सेंटर है करके, तो सेंटर में हमारे 600 बच्चे बाहर के आ रहे थे। तो 600 के जगह अभी 200-250 मैनेज करना बहुत आसान है।
दूसरी चीज ये है कि ये एग्जाम्स होने के बाद में तुरंत 18 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक के जेई का एग्जाम है, और नागपुर में हमारी स्कूल भी वहाँ सेंटर रहती है, और फिर 26 जुलाई को मेरे ख्याल से नीट का भी एग्जाम है। तो जुलाई महीना एंड तक के तो क्लासरूम शुरू होंगे ऐसा लगता नहीं है। अर्लीस्ट 1 अगस्त पर मेरे ख्याल से 1 अगस्त को भी वो सिचुएशन देख के फिर तय करेंगे, क्योंकि सीबीएसई की कुछ गाइडलाइंस अनऑफिशियली मेरे सामने आई हुई है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि जब तक के ग्रीन जोन में सिटी कन्वर्ट नहीं होती है, कोई एरिया कन्वर्ट नहीं होता, तब तक कोई स्कूल में बच्चे नहीं जाएंगे। अब ग्रीन जोन कन्वर्ट होने के बाद में भी सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स रहने वाले। कुछ परसों नरसों पेपर में भी आया था, कुछ ये सोच रहे हैं कि एक क्लासरूम में 24 से ज्यादा बच्चे नहीं बैठेंगे। आज 40-45 के करीब बच्चे बैठे हैं, तो वो ये समझ लीजिए कि आधे ही बच्चे बैठेंगे। फिर आधे बच्चों का क्या करना, इसके ऊपर भी पेरेंट्स के प्रश्न थे या सुझाव भी थे। कई बार पेरेंट्स का ये भी कहना था कि 2 अलग अलग क्लासरूम में आधे आधे बच्चे बिठाओ, एक क्लासरूम में पढ़ाए, दूसरे क्लासरूम में ई बोर्ड पे दिखाए। ये भी सुझाव लोगों से आए हैं। एक सुझाव ये भी आया है कि अल्टरनेट डे करे। एक सुझाव ये भी है कि कंपोजिट करे, कि जिनको ई लर्निंग पॉसिबल है, जिनके यहाँ सब सुविधाएं है, स्टिल कंटिन्यू विद द ई लर्निंग, और जिनके पास सुविधाएं नहीं है उन्हीं को सिर्फ क्लासरूम में बुलाया जाए। ये सारी चीजें हैं, पर ये सब डिसीजंस लेने के लिए समय लगेगा। जहां तो तक अभी जो बच्चे 10वीं और 12वीं में जा रहे हैं, इनके इसका सवाल है, तो सीबीएसई के तरफ से ये भी पहल हो रही है। ये भी कल परसों नरसों कुछ पेपर में आया था कि शायद इस साल सिलेबस मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि जो टाइम लॉस हो रहा है, ये टाइम लॉस को कवर करने के लिए शायद गवर्नमेंट कुछ सिलेबस मॉडिफाई करेंगी। तो अब देखो इसको कैसा करते हैं। आने वाले समय में कुछ जून एंड तक के ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे, ऐसा उनका कहना है। इसे एक्सटेंडेड ही एक क्वेश्चन है कि हाउ डू यू थिंक दिस एक्सपेरिमेंटेशन विद द एजुकेशन, बिकॉज education is not to be experimented, but what we are seeing presently is education is being experimented, some sort of digital। फिर जो आप syllabus reduce करने की बात किया, अब reduce in the sense it will be simplified syllabus and students will be en masse passed, that may be the intention of the present whatever thought process may be going on। So as a academician or educationist, what are your views on this particular situation, whether this sort of experimentation is good in education, and what could be the future of these digitalized educated students as compared to previously interactive educated students? So two questions are there। नहीं, जहाँ तक ये ई लर्निंग या डिजिटल लर्निंग का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई लंबी चलने वाली चीज नहीं है, सिचुएशन नहीं है। ये आने वाले 3-4 महीने में शायद खत्म हो जाएगी। 4 के जगह 6 महीने लगे, लेकिन खत्म होगी जरूर। और गवर्नमेंट का ऐसा कोई मानस नहीं दिख रहा है कि ई लर्निंग विल बिकम द कंटिन्यूअस थिंग, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कहीं पर ये ई लर्निंग, जूम मीटिंग या स्काइप, ये सब जो है, इससे हमको मैनेजमेंट करके एक नई दिशा मिल गई है। हम लोगों को जो एक हमेशा प्रॉब्लम रहता है, पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन की मीटिंग है, हम पेरेंट टीचर एसोसिएशन में पेरेंट्स को बुलाते हैं और पेरेंट्स की अटेंडेंस बहुत कम होती है, क्योंकि लोग समय नहीं निकाल पाते, समय का टाइम का कंस्ट्रेंट होता है, कुछ भी होगा, किसी को दूर रहते होंगे। अब ये सारी चीज़ें जो है, पर मेरा भी ये पिछले 1.5 महीने में अनुभव जो है
कि ये ई मीटिंग्स में अटेंडेंस बहुत ज़्यादा होती है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत अच्छी चीज़ सामने आई है कि ई मीटिंग्स करने से अटेंडेंस अच्छा होता है, तो लोगों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा होता है। और जितना लोगों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा रहेगा तो उसमें, पर जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है, आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू बी फ्यूचर। Okay. So there are few last questions because we are practically running out of the time. Before we take up ओके, few last questions, first I thank you on behalf of our Alumni Association for sharing your views. And gentlemen, tomorrow we have another session, that is staying safe in cyberspace, that is also related to online activities. It is at same time 5 p.m. tomorrow. So, few last questions to Salpekar sir. When these sort of situations are coming, we are rising to cope up with this particular situation. But as you expressed, that digital education is not going to be a future of, say, education forever. But with comparing this experimentation of digital education and previously what everyone followed, that is physical education, what you see plus in digital education and minus in digital education, so that we can take it forward. Because if some sort of this sort of calamities may happen in future, there would be tempting to move on digital education. So what are pluses and minuses you have observed in this limited span of time as far as digital or e-education is concerned? as far as e-education is concerned, at the moment we are seeing only the problems. The results will be visible only after 3-4 months. So I really won't be able to make any comment, plus or minus, whatever it is. Maybe we may discuss again sometime in October, November. Okay. For future of this particular education in COVID era. Message from No, no, your end, as far sir. as COVID, yeah, as far as COVID era is concerned, there is no doubt we don't have option. We are left with no option but to go for e-education. So at the moment, this is the only available platform, and we can adopt this technology, which is a boon in disguise, I would say. मुझे एक सारंग के तरफ से प्रश्न दिख रहा है। Sarang, I don't think e-learning system will replace the classroom teaching as far as schools are concerned. But maybe higher education, this can be a future. I think that is, Mukund, as far as abolishing holidays are concerned, I think government will do something like that because we have to make up the time. There is a big time loss, and by end of August or September only, we will be able to assess how much syllabus we have covered and then how much time is available with us. So all these things are going to happen. They may cancel majority of the holidays. All these things are possible.
Yeah, Vandana, we can look forward to parent volunteers. मैं एक मेरा अनुभव बताता हूँ. लास्ट ईयर मैं यूएस गया था और मेरी एक भतीजी के यहाँ रुका था. उसकी छोटी छोटी बच्चियां थी. एक बच्ची उसकी नर्सरी में थी, एक बच्चे प्राइमरी स्कूल में या छठी में अगर कुछ तो भी थी. तो बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, I made it a point to go and watch what they do. There is a established system there in US where they encourage parent volunteers, and they also want the parents to get involved into the education of their children much more than what is happening in our country. In a lighter vein, I'm telling you, don't take it very seriously. But I have seen some parents who feel हमने फी दे दी तो अभी आगे हमारा कुछ काम नहीं है, आगे सब स्कूल ने करना है, टीचर ने करना है. ऐसा नहीं है. पेरेंट्स जब तक अपने बच्चों में इंटरेस्ट नहीं लेंगे और उनकी पढ़ाई कैसी हो रही है, इन सारी चीजों को नहीं देखेंगे, तब तक के बच्चों की ग्रोथ जो है वो ठीक से नहीं होगी. केवल टीचर्स के भरोसे बच्चों की ग्रोथ नहीं हो सकती है. Any more question? We have already covered most of the questions. So Yeah. I think there is no any means there are many questions available over there, but with paucity of time, we should have to stop somewhere because it is unending subject. Discussions will go on. So I thank all the viewers for watching this particular session. I thank Shri Satish Salpekar for advising us in regarding his views on education in the COVID era. And with this particular last question, which is on our screen, we will close down. Chitish, can you have that Ritesh Nair question, please? Yeah. Yeah. This is last question, and we are closing them. Yeah. Attendance in e-learning, it's not unless you do the live classroom. Attendance cannot be ensured, and a teacher won't know whether the students are attending or not. But doing live classroom is a very big task, and it's a huge task, because as if you just consider my school, we will have to make 64 e-classrooms, and probably we will have to look for a leased line for all the 64 classrooms to operate. There are all these constraints. So e-learning is not a very good thing. मैं एक छोटे से इसको मराठी में म्हण आलिया भोगासी असावे सादर, या ई लर्निंग ये आज हमारी बेबसी है. इतना कह के मुझे ऐसा लगता है कि आज हमने इस कार्यक्रम का समापन करना चाहिए. Thank you all. Thank you, Mantra. Thank you.